Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS, CCA Rules 1965. It is part 7. In this part, I will discuss Rule 13 because up to Rule 12 already I have discussed. So, it is Rule 13, Authority to Institute Proceedings. In this part, I will discuss 10 MCQs plus explanation. And if you listen the explanation also easily you can attempt the descriptive questions, and it is useful for KVS principal and vice principal exam tier 2 and NVS principal exam tier 2, section officer exam, and assistant registrar in NIT exam. So for different exams it would be useful. So my friends, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My first Telegram channel link, it is t.me/bap82034, and second Telegram channel link, it is t.me/asit2034. So if you join my Telegram channel, then you can up to date yourself in regarding to the upcoming videos. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification, and your friends also, they will get notification. So now I am going to start Rule 13 of CCS, Classification, Control and Appeal Rules 1965. So you see, Rule 13, Authority to Institute Proceedings. Rule position, first you remember, it is very important one. Rule 13 subsection 1 bit A, you see the power of the President. The President of India or any authority authorized by him by general or special order can directly start disciplinary proceedings against any government servant. इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं. जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम अथॉरिटी है to directly to institute disciplinary proceeding against the government servant or by general or special order. Honorable President can appoint any other authority to institute disciplinary proceedings against any government servant. तो दो चीज है. ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट. अदरवाइज वो क्या करते हैं ना, एक जनरल की स्पेशल ऑर्डर वो रिलीज करते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है, तो उसमें सिंपल मीनिंग ये है, द प्रेसिडेंट हैज सुप्रीम पावर टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय. मगर यहां पर एक चीज क्वेश्चन आता है, यदि ऑनरेबल प्रेसिडेंट और कोई अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी देंगे तो ये जनरल और स्पेशल ऑर्डर ओके उनके लिए रिलीज होगा. ठीक है, तो ये 13 सबसेक्शन 1 बीट ए, इट इज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. रूल पोजीशन को याद रखना है. रूल 13 सबसेक्शन 1 उसका बीट ए, इट इज पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. उसका जो बीट बी है इसमें क्लियरली मेंशन है, द प्रेसिडेंट or authorized authority can order a disciplinary authority to start proceedings provided that the authority has the power to impose penalties under Rule 11 on that employee. Honorable President or any authorized authority, or authorized authority means जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकते हैं टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स. मगर उसमें क्या है, जो अथॉरिटी एक्चुअली अथॉरिटी के पास पावर होना चाहिए टू इम्पोज पेनाल्टीज अंडर रूल 11 ऑन दैट एम्प्लॉय. आपको याद रखना है कि रूल 11 जो है पेनाल्टीज के ऊपर है, माइनर पेनाल्टीज एंड मेजर पेनाल्टीज. तो उसमें चाहे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंटमेंट जिस अथॉरिटी को इट मींस अपॉइंट करेंगे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऑर्डर करेंगे कि टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स, और जिस अथॉरिटी के पास पावर है कि कोई भी पेनल्टीज वो इंपोज कर सकता है अंडर रूल 11 ऑफ सीसीए रूल्स 1965. तो उसमें सिंपल मीनिंग क्या है, द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू स्टार्ट द केस हिमसेल्फ.
कभी कभी क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो डायरेक्टली वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं, तो ही कैन टेल द कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो वो ऑर्डर करते हैं जो जो कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो उनको ऑर्डर करते हैं कि इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो ये 13 सबसेक्शन 1 बिट बी में क्लियरली मेंशन है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं, तो वो ऑर्डर देते हैं। ओके, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जिसके पास पावर है वो रूल 11 के हिसाब से जिस पावर है कि वो कोई भी पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, तो वो इंक्वायरी स्टार्ट करे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रूल 13 सबसेक्शन 2 है। रूल पोजीशन को याद रखिए, पावर ऑफ लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, इसमें दिया है पावर ऑफ लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, रूल 13 सबसेक्शन 2। A disciplinary authority who is normally competent to impose minor penalties. Minor penalties आता है रूल 11 क्लॉजेस I to IV like censure, withholding, increment etc. तो ऑलरेडी माइनर पेनल्टीज के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रूल 11 क्लियरली मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर दिया है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट है, माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, मगर वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो, इसमें दिया है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट है, उनके पास पावर है टू इंपोज माइनर पेनल्टीज, मगर उनके पास पावर नहीं है कि वो मेजर पेनल्टीज इंपोज करेंगे, मगर वो मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, कैन स्टिल स्टार्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर मेजर पेनल्टीज। तो सडनली तो मेजर पेनल्टीज नहीं लगेगा ना, फर्स्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है मेजर पेनल्टीज इंपोज करने का, मगर वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं जिसमें मेजर पेनल्टीज लगेगा। जब मेजर पेनल्टीज आता है रूल 11 क्लॉजेस 5 to 9 लाइक रिडक्शन इन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल, ठीक है, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। यदि मेजर पेनल्टी लगेगा मगर वो इंपोज नहीं कर सकते मेजर पेनल्टी, तब वो हायर अथॉरिटी को, इवन इफ दैट अथॉरिटी कैन नॉट फाइनली अवॉर्ड द मेजर पेनल्टी इटसेल्फ, क्योंकि वो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं मगर उनके पास पावर नहीं है मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, मगर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो उस केस में यदि मेजर पेनल्टी लगेगा तो वो जो हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी का इट मीन्स वो क्या करते हैं, यदि मेजर पेनल्टी लगेगा, क्योंकि उनके पास तो पावर नहीं है मेजर पेनल्टी इंपोज करने का, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड हो जाएगा हायर अथॉरिटी को फॉर फाइनल डिसीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिए जो रूल 13 सबसेक्शन 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके पास पावर है मेजर पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, मगर उनके पास मेजर पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं है। मगर यहां पर क्वेश्चन उठेगा, क्या वो मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, मगर जब मेजर पेनल्टी का बात आएगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा हायर अथॉरिटी को, तो हायर अथॉरिटी अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये रूल 13 था। सिंपल कुछ एग्जाम्पल दे देंगे इसी रिलेटेड में। सपोज जो हेड ऑफ ऑफिस है उनके पास पावर है माइनर पेनल्टीज का, उनके पास मेजर पेनल्टीज का पावर नहीं है। माइनर पेनल्टीज इंपोज करने के लिए उनके पास पावर है, मगर कोई ऐसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है रिलेटेड टू सीरियस मिसकंडक्ट, तो इस केस में वो तो मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, तो हेड ऑफ द ऑफिस अभी स्टार्ट कर दिए इंक्वायरी, मगर अल्टीमेटली जब रिपोर्ट आ गया उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि मेजर पेनल्टीज इंपोज होगा, तो वो तो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, तब वो हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड हो जाएगा, तो हायर अथॉरिटी फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आफ्टर द इंक्वायरी द केस इज सेंट टू ए हायर अथॉरिटी हु हैज द पावर टू अवॉर्ड मेजर पेनल्टी, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
आप देखिए अंडर रूल 13 सबसेक्शन 1 ऑफ CCA रूल्स 1965, which of the following authorities has the inherent power to institute disciplinary proceedings against any government servant? अभी हम डिस्कस किए थे कि जो 13 सबसेक्शन 1 और उसका जो बीट ए है, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम अथॉरिटी है, वो डायरेक्टली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू करेंगे और इसमें और कोई अथॉरिटी को वो पावर देंगे, ठीक है। तो उसमें ये यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन an authority other than the president gain the power to institute proceedings under rule 13 subsection 1 of CCA rules 1965? क्लियरली मेंशन था रूल 13(1) सबसेक्शन ए में, इसमें क्लियरली मेंशन था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, चाहे जनरल ऑर्डर हो कि स्पेशल ऑर्डर हो, उसमें वो और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो यहां पर तो आंसर हो गया थ्रू है जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो उसमें क्या होगा, वो स्पेसिफिक अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा और वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूल 13 सबसेक्शन 2 of CCA rules 1965, can a disciplinary authority institute proceedings for a major penalty like clauses 5 to 9 if they are only competent to impose minor penalties? तो ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि आप रूल 13 सबसेक्शन 2 में मैं बोल चुका हूं कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके पास पावर है माइनर पेनल्टी इंपोज करने का, उनके पास पावर नहीं है मेजर पेनल्टीज इंपोज करने का। तो उस केस में वो मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं और आफ्टर इंक्वायरी यदि ये फाइनल होगा कि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा हायर अथॉरिटी को, तो हायर अथॉरिटी उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मगर मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है माइनर पेनल्टीज इंपोज करने का, वो इनिशिएट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रूल 13 सबसेक्शन 2 ऑफ CCA रूल्स 1965 इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? 4 options: to prevent any penalties from being imposed, to allow a lower authority to start a case that may lead to a major penalty, to reduce the workload of the president, to ensure all employees are fired eventually. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रूल 13 सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि कोई लोअर अथॉरिटी जिसके पास पावर है माइनर पेनल्टीज इंपोज करने का, वो मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। मेजर पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं है, मगर मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स गिवन, राइट। द प्रेसिडेंट हैज द इनहेरेंट पावर टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये करेक्ट है। आप रूल 13 सबसेक्शन 1 देख लीजिए। एन अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ए स्पेशल ऑर्डर कैन डायरेक्ट ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स, ये करेक्ट है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट स्पेशल ऑर्डर में ऑनरेबल प्रेसिडेंट और कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी को पावर दे दिया और वो ऑर्डर करेंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, कि टू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स, करेक्ट है, ठीक है। ये है रूल, ये रूल 13 सबसेक्शन 1 बीट ए, ये रूल 13 सबसेक्शन 1 बीट बी। थर्ड स्टेटमेंट, ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन ओनली इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स
if they are personally competent to impose the final penalty, if they are personally competent, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर करेक्ट बोला है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन यहां पर पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी competent to impose only minor penalties can initiate proceedings for major penalties, correct है। The initiation of such proceedings is valid even if the authority is not competent to impose the major penalty. The initiation of such proceedings is valid even if the authority is not competent to impose the major, ये correct है। मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेजर पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं है, ठीक है। रूल 13 सबसेक्शन 2 ओनली अप्लाइज इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स टू ग्रुप ए सर्विस, ऐसा कुछ नहीं है। रूल 13 सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके पास पावर है माइनर पेनल्टी इंपोज करने का, ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करने का पावर है, मगर वो मेजर पेनल्टी रिलेटेड प्रोसीडिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, मगर जब मेजर पेनल्टी का बात आएगा अल्टीमेटली इंक्वायरी के बाद वो फॉरवर्ड हो जाएगा हायर अथॉरिटी को। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिया है करेक्ट आंसर डिटेक्ट किया जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंडर रूल 13। द प्रेसिडेंट कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली, करेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन एम्पावर अनदर अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, ये भी करेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट ए कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, ये भी करेक्ट है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट खुद इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं कि और कोई अथॉरिटी को पावर दे सकते हैं इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स के लिए, नहीं तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकते हैं एक कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है, अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो, ये सिनेरियो को पढ़ लीजिए। एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी competent to impose minor penalties start a disciplinary case against an employee for a major offense that usually leads to dismissal, a major penalty. Is this action valid under rule 13? यहां पर और एक बार ये स्टेटमेंट को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी competent to impose minor penalties starts a disciplinary case against an employee for a major offense that usually leads to dismissal, a major penalty. Is this action valid under rule 13? Yes, because rule 13(2) allows initiation, notwithstanding the lack of power to impose the final penalty. Second statement ये दिया है, no, because it violates the principle of natural justice if the initiator cannot also be the punisher. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हाँ, इसमें क्या है, ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है में माइनर पेनल्टीज इंपोज करने के लिए पावर है, मेजर पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं है। मगर अभी जो मेजर ऑफेंस रिलेटेड मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रहा है तो उनके अंडर में हो सकता है, मगर मेजर जो फाइनली जब मेजर पेनल्टी इंपोज होगा वो नहीं कर सकते, यही है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, असर्शन रीजन, न्यू पैटर्न ऑफ स्टाइल ऑफ क्वेश्चन। असर्शन दिया है द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, तो ये करेक्ट है। रीजन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इंपोज पेनल्टीज अंडर रूल 11 ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी ठीक है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, मगर जिस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को वो डायरेक्शन देंगे वो उसके पास पावर है कि जो रूल 11 है क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का, उसमें जो भी पेनल्टीज इंपोज करने का पावर है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो जो असर्शन है, रीजन है, तो बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर,
क्योंकि जो रीजन, दोनों तो करेक्ट है मगर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट तो डायरेक्शन देंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, मगर वहां पर देखा जाएगा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है कि नहीं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है, जिसके पास पावर है कि रूल 11 में जो भी पेनल्टीज इंपोज होगा उनके पास पावर है, वो इंपोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रूल 13 सबसेक्शन 2 ऑफ सीसीए रूल्स 1965 परमिट्स व्हिच अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर मेजर पेनल्टीज। टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर मेजर पेनल्टीज, तो कोई भी लोअर अथॉरिटी कर सकता है जिसके पास ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करने का पावर है, मेजर पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं है, माइनर पेनल्टी इंपोज करने का पावर है, मगर वो मेजर पेनल्टी रिलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इंपोज माइनर पेनल्टीज, और उनका ही अंडर में मेजर पेनल्टी रिलेटेड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होगा, इनिशिएट होगा, इंक्वायरी होगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन था, तो ये रूल 13 था। ठीक है, फिर मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 8 आएगा, उसमें मैं मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स का स्टेप्स के ऊपर मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel, so that you can get notification, and your friends, and definitely you and your friends they will enjoy my subsequent videos. So आज इतना ही है, thank you and namaskar to all of you.